मैं वीडियो से दिखा नहीं सकता Yes, Ali क्योंकि Salman. मेरा सिर्फ वीडियो नहीं है मेरे पास। Okay, no issues. Okay, so what we need to do is that page. You guys remember that? Yes. Okay. Yes. That page was basically for your glossary words. Have you done it? No. No. I sent you the glossary words on your. ये माउंटेन चैप्टर का ना? All right. Okay. So I'm sharing a PowerPoint. Just kindly go through with me. Okay. You can all unmute yourselves, but kindly don't unmute yourself. Okay. आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज करिएगा मत, वरना हम लोग बीच बीच में पढ़ नहीं पाएंगे। जब हम एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, then you can ask me any question you want. Okay, so kindly listen very carefully. Up till now, what we have studied, we have studied about the mountains. Okay, I told you that the distribution of water and mountain. Okay, what is the distribution percent of water in the world? How much water do we have on Earth? Does anyone remembers that? Yes, we have 70% water and 30% land, and mountains takes 20% of all the land area. Okay, I told you that there is स्क्रीन शेयर में लोडिंग आ रही है। okay. Can you all hear me now? Yes, am I audible? We have some mountains. Okay, I told you that we have some different forests, we have different deserts, we have different kind of 20% water है और 10% लैंड है। मैं स्किल लैग हो रही है। yeah. So लैंड माउंटेन्स yes, so sharp black mountains, low mountains and cone shaped mountains. मैं सब लैग हो गई। यार चीज कि जब भी आप लोग बोलते थे ना तो मेरी आवाज नहीं आती थी। सही है, अब हम देखेंगे किस किसके पास मेरी आवाज नहीं आती। सही है, अचानक से मुझे एक चीज याद आई कि जीरो टर्म में भी हमें बहुत मसले आए थे। उसके बाद से मैंने क्या करना शुरू किया था, आप लोगों को परमिशन नहीं दी थी कि आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। सही है, तो आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? सही से आ रही है ना? जी, मुझे याद आया ये कोई मसला था ज़ूम के अंदर। सही है, सो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे कि हम लोग ये डिसाइड कर चुके थे कि क्या होता है कि 70% वाटर होता है, 30% लैंड था। जो 30% लैंड एरिया था, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स होती थी। जियोग्राफिकल फीचर्स से क्या मुराद थी? जियोग्राफिकल फीचर्स से मुराद है कि इसके अंदर हमारे पास माउंटेन्स है। सही है, इसके अंदर हमारे पास फॉरेस्ट होंगे, इसके अंदर हमारे डेजर्ट्स होंगे, इसके अंदर डिफरेंट हिल्स होंगे। सही है, सो मैनी डिफरेंट थिंग्स ऑफ जियोग्राफी। बट जो माउंटेन्स है वो कितना एरिया लेते हैं? माउंटेन टेक्स अबाउट 20% ऑफ ऑल द लैंड एरिया। ओके, हम लोग अभी तक ये सब चीज़ें पढ़ चुके थे। सही है, उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। सही है, तो 3 टाइप्स कौन कौन सी होती थी? नंबर 1 हमने क्या पढ़ी थी? शार्प जैग माउंटेन्स। ओके, शार्प जैग माउंटेन्स कौन से माउंटेन्स होते हैं? ये वो माउंटेन होते हैं जो कि क्या होते हैं, दे आर वेरी ग्रेट इन हाइट्स। सही है, like for example we talked about the Himalayas. Okay, and there were many different types and examples which we will obviously study. Okay, so the Sharjah mountains are also called as fold mountains. सही है, Sharjah mountains को क्या कह सकते हैं? Fold mountains कह सकते हैं। Then we talked about number 2, the lower mountains. Yes, Abdul Rafi, what are the lower mountains? मिस क्या? What are the lower mountains? The second type. Can you kindly explain? Ali Salman, तुम क्लास के बीच में मत सो जाना कहीं। मैं बताऊं? जी, Lower mountains usually with very steep sides. These are block or fault mountains which are fairly rare. can you explain what you have just read? What is it? मतलब बहुत न्यू स्टीप। क्यों होती है? मतलब ऐसे steep होते हैं।
स्टीप का क्या मतलब होता है? Miss New. You? Yes, Sanan. What are lower mountains? Lower mountains are mountains usually have steep sides. Yes. What does it mean? Teacher, they have rough sides and slopes. Yes, but I'm still not getting the point. Can anyone tell me clearly what are the lower mountains? Just raise your hand and I will give you a chance. Okay, I think Teacher, Sharada these are wants block to. or fold mountains which are fairly rare. Yes, Sharada. Miss, lower mountains are the Flock River. Flock River. टीचर गूगल पे सेंड किए. Exactly. लेकिन हम लोग इसको मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि ये होते क्या है बेसिकली. आप लोग मुझे बता रहे हैं कि इनकी स्टीप साइड्स होती हैं, लेकिन किसी को समझ में आया इसका क्या मतलब है? Miss, they are very rare. तो ऑटोमेटिकली रेयर का क्या मतलब होता है? रेयर का मतलब होता है यूनिक. सही है. सो ऑटोमेटिकली दे आर यूनिक. व्हाई दे आर यूनिक? ओके, सो आई एम टेलिंग यू राइट नाउ दे हैव स्टीप साइड्स एंड दैट इज व्हाई दे हैव अ फॉर्म ऑफ ब्लॉक. आई टोल्ड दैट स्टीप का क्या मतलब होता है? फ्लैट. स्टीप का क्या मतलब होता है? फ्लैट. फ्लैट मीन्स स्ट्रेट. तो क्या कह रहे हैं, ये वाहिद इस तरह के माउंटेन्स होते हैं जो कि ऊपर से क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं. वो इस तरह से नहीं होते, पीकी नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं. जब भी क्या होता है कि इनकी शेप किस तरह की होती है? स्क्वायर शेप होती है. और जब भी इनका नाम क्या दिया गया है? ब्लॉक माउंटेन्स या फिर फॉल्ट माउंटेन्स. सही है. दीज माउंटेन्स आर ब्लॉक माउंटेन्स बिकॉज दे हैव अ शेप ऑफ अ ब्लॉक. ओके, and they are very rare. Why? Because have we seen any square mountains in our life? सही है. हम लोग स्क्वायर माउंटेन्स नहीं देखते. सही है. बिकॉज ऑफ स्क्वायर माउंटेन्स हमें लगता था नहीं होते. So these mountains are very rare. That is why rare means unique. Okay, so that was the second type. Then we talk about the third type, and third type is the cone shaped mountain. Cone shaped mountain से क्या मुराद है कि cone shape हम कहते हैं volcanic mountains को. सही है. इसके अंदर क्या होता है? इन माउंटेन्स के अंदर से लावा और एशेस निकलता है और इनको दूसरा नेम क्या कहा जाता है? वोल्केनिक माउंटेन्स का नाम दिया जाता है. आर वी क्लियर अप टिल नाउ? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन द क्लास. सही है. लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा भूल गए थे. Okay, so are we clear? Should we move on? Okay, then I told you to draw the diagram of formation of four mountains, and today we are going to be studying the formation of four mountains in deep. Okay, so just stay with me. Now, four mountains are basically how are four mountains created? Say आप कह रहे हैं कि four mountains बनते कैसे हैं? Have you all opened your books? Have you all opened page number 29? Kindly show me your books like this. Hurry up. Okay, so you all have your books. So I'm sorry, but I'm not able to screen share right now. I don't know why, because of my internet maybe. So yeah, so you need to just focus on your books. Okay, now four mountains are basically it is written as that we have already talked about the earth's what happens when earths collide. So yeah, you guys remember when we were studying the plate tectonics chapter, हम लोगों ने earthquake के chapter में क्या पढ़ा था कि जब भी दो plate tectonics collide करती हैं वापस क्या आता है? earthquake आता है. सही है. whenever two plate tectonics collide we get an earthquake. सही है. तो क्या कह रहे हैं कि इसी वजह से क्या कह रहे हैं कि फोर माउंटेन्स अब कैसे बनते हैं. सही है. तो इसकी सिंपल सी इजी सी डेफिनेशन हमने उस टाइम भी पढ़ी थी कि whenever two huge land fights we always get a mountain. आप लोगों को याद है हमने पढ़ा था ये. सही है. तो क्या होता है कि जब भी दो बड़े बड़े लैंड आपस में फाइट करते हैं ना, तो रिजल्ट में क्या होता है कि दोनों आप एक दूसरे को जगह नहीं देते बिकॉज ऑटोमेटिकली दे बोथ आर ह्यूज लैंड्स. सही है. वो दोनों बड़े बड़े से होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को जगह नहीं देते और उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी वो एक दूसरे को पुश करते हैं, पुश टुगेदर होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो उनके एजेस होते हैं वो क्या होते हैं? स्टार्ट होना खड़े हो जाते हैं. सही. स्टार्ट होना मतलब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं. एजेस किसे कहते हैं? जो साइड के पॉइंट्स होते हैं. सही है. तो क्या कह रहे हैं कि जब दोनों आपस में टकराते हैं दोनों के एजेस खड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं और जब दोनों के एजेस खड़े होना स्टार्ट होते हैं तो वो किस शेप में बन जाते हैं? माउंटेन की शेप में बन जाते हैं. आर वी क्लियर? सही है. तो जब भी क्या कह रहे हैं कि फोर माउंटेन्स वो वाहिद माउंटेन्स हैं जो कि क्या कब बनते हैं? जब भी जो टेक्टोनिक फोर्सेस होती हैं, जब भी लैंड होते हैं, जब भी आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? हमारे पास फोर माउंटेन्स क्रिएट होते हैं. सही है. नाउ बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि जो सबसे ज्यादा फेमस फोर माउंटेन्स है ना वो कौन से होते हैं? वो हिमालयाज होते हैं. कौन से होते हैं? हिमालयाज.
क्यों? क्योंकि हिमालय सबसे ज्यादा फेमस फोल्ड माउंटेन इसलिए है क्योंकि हिमालयस के अंदर आपको पता है हमारे पास कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं? इसी के अंदर हमारे पास K2 आती है, इसी के अंदर क्या आता है हमारे पास डिफरेंट, जैसे हमारे माउंट एवरेस्ट आता है। तो ये बेसिकली क्या है, हिमालयस खुद एक पीक है, माउंटेन रेंज है, इसके अंदर डिफरेंट माउंटेन्स मिलेंगे आपको। सही है, हिमालय खुद कोई माउंटेन नहीं है। सही है, हिमालय क्या है, माउंटेन की रेंज है, यहाँ पे आपको डिफरेंट माउंटेन्स मिलेंगे। सही है, तो क्या कह रहे हैं कि क्या होता है कि जो हिमालय से सबसे ज्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि जो हमारे अर्थ की 18 टॉलेस्ट प्लेस है, टॉलेस्ट प्लेस का क्या मतलब है, टॉलेस्ट पीक्स का, कि सबसे जो अर्थ की हमारी जो हमारी अर्थ की सबसे ज्यादा टॉलेस्ट मतलब पीक्स है ना, वो क्या होती हैं? वो हिमालय के ऊपर है। आप लोग को याद है हमने बात पढ़ी थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई जब स्पेस में जाएगा तो उसको सबसे पहली चीज क्या दिखेगी? यस रजा, इफ समवन गोज टू स्पेस तो उसको फर्स्ट थिंग क्या दिखेगी? Why? Yes, Rija, why? Because they are huge and their size are so long. Exactly. Why? Because mountains are very huge. हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि माउंटेन्स के साइज क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। सही है, तो हमने मतलब डिस्कवर किया था कि अगर कभी भी कोई स्पेस में जाएगा तो द फर्स्ट थिंग दे विल सी विल बी माउंटेन्स, उनको सबसे पहली चीज माउंटेन्स दिख जाएंगी। सही है ना, तो इसका रीजन हमने क्या पढ़ा था, क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ की सबसे ज्यादा टॉलेस्ट पीक्स होती है ना, जो मतलब अर्थ की सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्लेसेस हैं जहाँ से आप खड़े होंगे, आप उससे ऊपर किसी जगह पे खड़े नहीं हो सकते, वो सारी कहाँ पे होती हैं? माउंटेन्स के ऊपर होती है। सही है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना तो वो पूछ सकता है जी, जिसको भी कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। ये अब्दुल्ला फरहान, जी अब्दुल्ला फरहान, कोई मसला बेटा? समझ में आ रहा है? अभी तक मिस आपने कुछ काम नहीं करवाया ना? We have done glossary words only. Yes, Yes, miss. Yes. Do you have any problem? No. So, are we clear कि fold mountains किस तरह से create होते हैं? If someone asks you that how fold mountains are created, can you tell me now? तो मैंने देखे हिमालय रेंज। Yes, because you were just traveling, right? Yes. I remember. Yes, Alicia. Now, can you? मैंने K2 देखा हुआ है। Alicia, can you tell me how fold mountains are created? Yes, teacher. Yes. When the tectonic collide, these fold mountains. Yes. Yes. When Earth plate collide, then K2 देखे। टीचर ये देखे मिस, ये वाली वीडियो है Large. Teacher, जो आप स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही, वो वाली वीडियो है मिस, ये देखें। teacher, when two large lands collide. Exactly. So हम लोग क्या पढ़ने वाले थे कि कोई भी सब एक साथ नहीं बोलेगा। मिस ये वाली वीडियो देखिए, ये है नंबर 1 रूल क्या हमारी क्लास का, कि एक साथ सब नहीं बोलेंगे। सही है, if you want to answer, खाली raise your टीचर hand. ये देखिए, ये वाली वीडियो है। No, I will let you know. Okay, so moving on. Should we move on? अगर आपको fold mountains समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ जाएं। Okay, so kindly take out your copies. Yes, ma'am. Yes. और हम लोग थोड़ा सा कॉपी वर्क स्टार्ट कर दें। हरी अप, क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालिए कॉपीज के अंदर। जो फर्स्ट पेज आप लोगों को मैंने लिस्ट करवाया था, यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग है। सही है मिस, नहीं है डिग्री सही है। Even if my voice is lagging somehow, you have to bear it. ठीक है, आप लोगों को बेयर करनी पड़ेगी। ओके, सो काइंडली अपनी कॉपीज निकालिए। कॉपीज निकालने के बाद क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालिए प्रॉपर्ली। सही है, जो क्वेश्चंस होंगे वो ब्लैक से लिखिएगा, जो आंसर्स होंगे वो ब्लू से लिखिएगा, और काम साफ सुथरा कीजिएगा। आप लोगों को पता है ना आपकी कॉपीज के मार्क्स हैं इजाफा। सही है, फाउंटेन की डायग्राम की बात ना जी। फोल्ड माउंटेन डायग्राम के आपने एक साइड पे डायग्राम बनाई है, तो हम इसकी इस साइड पे काम करेंगे। जी राफे, बिल्कुल सही। इस टोटल कितने क्वेश्चन आंसर्स हैं? I don't remember. I think 5 maybe. मिस टीचर
पेपर के बाद डायरेक्ट चले गया तो मिस मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ हुआ। मिस ये देख ले, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ हुआ। मैं कोई भी काम नहीं करवाया। नहीं मिस ये देखे, मैंने आधा की किया है। नो बेटा, ये पुराना काम होगा। आरिफ, इसके बाद स्प्रिंग टर्म की हेडिंग डालो और स्प्रिंग टर्म का सिलेबस आएगा, स्प्रिंग टर्म का सारे वर्ड्स मीनिंग आएंगे एक पेज पर, फिर आप काम स्टार्ट करो। यस राफिल, एक्सलेंट। ओके, सो काइंडली yes Shahraza. Okay, after your diagram, सही है, और you can say in front of your diagram, वहाँ पे हेडिंग डाली क्वेश्चन आंसर्स की, ऊपर टॉप पे डेट जरूर मेंशन कीजिएगा, सही है, और अपनी कॉपी प्रिपेयर कीजिए। आप लोग को कॉपी सब टाइम पे सबमिट करानी है। ओके रजा, लोअर माउंटेन्स क्या होते हैं? लोअर माउंटेन्स को ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। रजा आएगा? ओके सही रजा, लोअर माउंटेन्स को क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, सही है। ये वो माउंटेन्स होते हैं जिनकी साइड क्या होती है? स्टीप होती हैं। स्टीप से क्या मुराद है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्टीप से मुराद होता है फ्लैट या फिर स्ट्रेट, सही है। तो क्या करेंगे, वाहिद इस तरह के माउंटेन्स होते हैं। जब तुम डीप में पढ़ोगे ना रजा, भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने फोल्ड माउंटेन्स पढ़ा, जैसे हम फोल्ड माउंटेन्स भी पढ़ेंगे, तो तुम्हें और इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या होते हैं। इनको ब्लॉक माउंटेन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी साइड स्टीप होती है, फ्लैट होती हैं। तो ये क्या होते हैं, ये ऊपर से पीक ही नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होते हैं कि स्क्वायर शेप माउंटेन्स होते हैं, सही है। अब आपने कभी स्क्वायर शेप माउंटेन देखे रजा? नहीं ना, तो जब ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। रेयर मीन्स यूनिक, ये बहुत कभी कभी लोगों को दिखते हैं। और आप लोगों पे सारा काम व्हाट्सएप पे कोई नहीं भेजूंगी, साथ साथ काम कीजिए प्लीज, सही। सब हेडिंग डाल दी क्वेश्चन आंसर्स की? जल्दी से डालिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। डाल दी। फाइन, आई एम स्क्रीन शेयरिंग यू राइट नाउ। तो देखते हैं आप क्या होता है, हैंग होती है नहीं होती। Yes, Saran, do you want to ask me something, beta? Can you all see it? ओके सर। कुछ हैंग हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, आप मुझे बता सकते हैं। Okay, so we are going to start from here. सही है। First of all, just write your date in okay at the above, ताकि आप लोगों को डेट का कोई मसला ना हो। Okay, now what is question number 1? Question number 1 is how many types of mountains are there? Okay, so just kindly go with me, सही है। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग साथ साथ क्लास में ही काम कर लेंगे, आप लोग को बाद में नहीं करना पड़ेगा, सही है। या तो आप लोग ये मुझे बता दीजिए कि आप लोग बाद में कर लेंगे तो हम लोग क्लास में लेक्चर कर ले, तो आप लोग इसकी पिक्चर ले लें, क्या करना है आप लोग मुझे खुद बता दीजिए। यू गाइस वांट टू डू द कॉपी वर्क राइट नाउ, और शुड आई जस्ट send you the work on WhatsApp, or you can take the pictures right now? जैसे हम लेक्चर कर रहे हैं, लेक्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Oh, lecture ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल कॉपी वर्क इज एज इम्पोर्टेंट। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप लोग मुझसे अभी पूछ लेंगे। यस माज़र? मिस हम ऐसा करें कि 2 क्वेश्चन अभी कर लें और बाकी सब मैं स्क्रीनशॉट खींच के बाद में कर लें। बिल्कुल, आप ऐसे करें कि आप अभी काम कीजिए, ठीक है, इससे पहले मैं आपके घर आके ऐसे मार लगाऊं, ठीक है माज़र? सो ओके, वेट, यस रुजा, नाउ just yes How Ruja? many types of mountain are there? I cannot hear you बेटा, आपकी आवाज बिल्कुल ऑडिबल नहीं। टीचर आपका भी फर्स्ट ब्लॉक है, तो आप सेकंड ब्लॉक में अपना लेक्चर कर लीजिएगा। बिल्कुल, हम लोग यही करेंगे कि हम लोग साथ साथ पहले स्टडी करेंगे, हम उसका कॉपी वर्क करेंगे, फिर हम स्टडी करेंगे, फिर हम कॉपी वर्क करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आता रहे कि हम क्या काम कर रहे हैं। ओके, नाउ किसकी जिम्मेदारी है ये?
ओके सनान या माजन, आप दोनों में से मुझे जब टाइम ओवर होने वाला होगा क्लास का तो आप मुझे उससे पहले बताएंगे, 40 मिनट से पहले. ओके. Okay, now question number 1 is how many types of mountains are there? So there are 3 main types of mountains in the world. Number 1 क्या होती है? Sharp-Jack mountains. हम लोग already पढ़ चुके हैं कि Sharp-Jack mountains क्या होते हैं? These are the mountains which reach great heights. सही है, ये बहुत ज़्यादा great heights तक जाते हैं and that is why they are also called as fold mountains. इनको fold mountains क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये fold होके बनते हैं, जिस तरह से हमने अभी पढ़ा था. सही है. Number 2, lower mountains. These are the mountains with usually steep sides. These mountains are very rare. सही है. ये जब अभी हम आगे दोबारा जब आप फोल्ड माउंटेन्स तक काम कर लेंगे ना क्वेश्चन नंबर 2 तक, तो फिर ये हम पहले लेक्चर रीड करेंगे फिर हम दोबारा काम करेंगे. सही है. आगे एंड लास्ट टाइप इज कोन शेप माउंटेन. ये हम अभी पढ़ चुके थे. ओके. नाउ question number 2 is what are fold mountains, how are they created, also give some examples. सही है. मेक श्योर ये क्वेश्चन आपका फोल्ड माउंटेन्स की डायग्राम के सामने ही रहे. सही है. नाउ fold mountains are created when 2 or more earth's tectonic plates are pushed together. Rocks are forced into the air and are pushed by pressure. सही है. वही सेम चीज क्या है कि क्या होता है जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में फाइट करती हैं, जब भी टू लैंड्स आपस में फाइट करते हैं, तो क्या कह रही है कि जो रॉक्स होते हैं ना लैंड के अंदर, वो क्या होते हैं, वो एयर के अंदर पुश होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उनके एजेस एयर में खड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं. और क्या कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, अपने आप की एक माउंटेन की शेप दे देते हैं. अब देखिए एग्जांपल्स के अंदर नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, हिमालय माउंटेन्स इन एशिया. तो यानी कि एशिया से क्या बना होता है कि एशिया के अंदर जो हमारे हिमालयाज है, इनके अंदर हमारे K2 हो गया, हमारा माउंट एवरेस्ट हो गया और डिफरेंट माउंटेन्स होंगे. सही है. उसी तरह एक रेंज है माउंटेन की एल्प्स, वो कहाँ पे, यूरोप के अंदर है. सही है. एक एंडेस माउंटेन रेंज है, एक रॉकीज है और एक यूरल्स है. ये टॉप 5 माउंटेन रेंजेस हैं. सही है. इसके अलावा भी बहुत है ऑटोमेटिकली, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, लेकिन हम लोग सिर्फ टॉप 5 पढ़ेंगे. सही है. सो मेक श्योर योर वर्क इज नीट. जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो हेडिंग है. सही है. तो आप भी प्लीज अंडरलाइन ही करिएगा उसे. Yes, Asghar. टीचर स्प्रिंग टर्म का टाइटल टीचर आपकी दूसरी क्लास शुरू हुई है, दूसरी क्लास का ब्लॉक. टीचर स्प्रिंग टर्म का टाइटल पेज बनाने के बाद फिर उसके बाद क्या करना है, सिलेबस के साथ स्प्रिंग टेप का टाइटल पेज लिखेंगे, उसके बाद सिलेबस आएगा. सही है. सिलेबस जी कहाँ है? सिलेबस बेटा मैंने सारा काम ही व्हाट्सएप पे सेंड किया हुआ है असगर. अच्छा मैं सिलेबस ले लूंगा, फिर उसके बाद आप काइंडली 2 पेज लीव कर दीजिए. एक सिलेबस का होगा और एक आपके ग्लॉसरी वर्ड्स का होगा. सही है. उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करना है. एक सेकंड मिस, मैंने क्वेश्चन आंसर मिस मैंने भी यही किया. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउंटेन आर देयर, ये सब लिखना है. ऑटोमेटिकली यस. ओके. माजिद बेटा आपने करा तो यही है, लेकिन मेक श्योर योर कॉपी वर्क इज कंप्लीट. सही है. आप लोग जब मंडे को अपनी कॉपी सबमिट कराएंगे तो मुझे सबका सारा काम चाहिए. जिसका काम नहीं हुआ मैं उसके उसी वक्त 10 में से 2 नंबर तो काट लूंगी कॉपी के. मैं पहले बता रही हूँ. ओके मिस. सही है. सब आप लोगों को पता होगा मैं कॉपी के मामले में कितनी स्ट्रिक्ट हूँ, है ना. यस मिस. वैसे नहीं हूँ, लेकिन मुझे कॉपीज बहुत प्रॉपर्ली मेंटेन चाहिए होती हैं. ओके. सो हैव यू गाइस डन? आर यू गाइस डन? देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस. सही है. आई एम ओनली गिविंग यू 3 more minutes और इसके बाद मैं आपकी ये हटाने वाली हूँ. ओके मिस. Sharp. Yes, Partha. Would you ask me something, beta?
बस क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा नीचे कर दे। कर दूं? अच्छा बेटा, बिल्कुल कर देता। सही है? यस। Okay, have you guys done it? Are you guys done? Yes. Unmute. Okay, wait. Okay. You can all ask me. आप लोग अपने आप का म्यूट कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों ने सबने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए? टीचर नहीं वापसी लगा नहीं। ओ टीचर टीचर मैं भी नहीं कर पाया टीचर, आप अनम्यूट नहीं कर रही थी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने भी नहीं किए। कौन से अपने माउंटेन पे हूँ? आप लोगों को सबकी ना टीचर मैं लोअर माउंटेन पे हूँ। पता है? टीचर मेरा पहला क्वेश्चन चल रहा है। यहाँ पे अपने आप को तो अनम्यूट कर सकते हो, कर लो। इसका पता है क्या मतलब है? इसका मतलब है आप सबकी मार पड़ेगी अब। सही है? मिस आप ये सारे क्वेश्चन ग्रुप पे भेज दीजिएगा ना। अच्छा, आप लोग अपने स्क्रीनशॉट्स ले लो। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले मिस लेता मेरी हूँ। मार तो पिटने वाली क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था पहले। सही है, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। सही है? अब आप लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे? यस बस मैंने भी। आपने कहा अच्छी कॉपी चाहिए, इसलिए स्लो स्लो अच्छे लिखना है। तुम अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा स्क्रीनशॉट। आप ही ओके नाउ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब सबसे पहले आपको कुछ दोबारा बोलना शेयर करते हैं। हाँ मैं कर रही हूँ राफी 2 मिनट कर रही हूँ। सबसे पहले क्या काम है? मिस मैं स्क्रीन करते हैं। कर रही हूँ 2 मिस 2 मिनट आरिफ 2 मिनट। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, मैं आप लोग की अटेंडेंस ले रही हूँ। सो काइंडली मुझे अपने अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए सब। सही है? आप लोग की भी 2 अटेंडेंस लूंगी, इस क्लास के एंड में भी लूंगी, नेक्स्ट क्लास के एंड में भी लूंगी। अगर किसी की दोनों नहीं आई ना तो मैं उसको 0 कर दूंगी, पहले बता रही हूँ। सही है? सबसे पहले राफिर प्रेजेंट। फरहान भी है ना? अभी यहाँ इमरान नहीं है ना? अमसाल, अनाया, मिस मैं हूँ यहाँ पर। प्रेजेंट। तानिया, प्रेजेंट। प्रेजेंट। अहम, दानिश, सुनान, जाहिद तो आते ही नहीं है। प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। मुंतहा भी आई है, रिजा भी आई है, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। मानिया भी। हाँ मिस मेरा लिख ले प्रेजेंट। दानिश मैं भी प्रेजेंट हूँ मिस, भूल नहीं जाएगा। दानिश नहीं आया ना? मिस मैं आया हूँ। मैं भी प्रेजेंट हूँ, भूल नहीं जाएगा। मैं भी प्रेजेंट हूँ। हाँ मुझे याद है, मुझे याद है। अभी सही से आवाज नहीं आ रही है। तो बच्चे नोट कर लेना, वो मुझे याद है। मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर। चाहे आमना नहीं आई ना? आरिफ है, आर्यन है, हिबा नहीं आई, हुमैरा आई थी, मुबशिर आए हुए थे, अली प्रेजेंट मिस, प्रेजेंट प्रेजेंट मिस। मेरी मिस वैसे मेरी बात सुन ले मिस। हाँ बोलो आरिफ बोलो। मिस हाँ डीजे के प्रेजेंट में। मिस हाँ हो गया। ये देखिए मिस मेरा आधा काम हुआ है, बस के आगे कहाँ से काम शुरू करूँ, कैसे करवा और काम मिस 30% नीचे और थोड़ा स्क्रीनशॉट ले जल्दी। मिस नीचे करें। मिस नीचे मिस नीचे स्क्रीनशॉट ले ले इसका। टीचर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गया। मिस मेरी बात सुन ले पहले। हाँ बोलो। अरे अरे यार मिस नीचे इसके करें। बाद मैं काम कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से? ना क्या कह रहे हैं कि अप टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब भी फोल्ड माउंटेन्स किस तरह से आते हैं, जब भी 2 प्लेट्स मीट करती हैं, जब भी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, या जब भी 2 लैंड आपस में फाइट करते हैं, आपस क्या आते थे? फोल्ड माउंटेन्स आते थे। सही है?
नाउ क्या कह रहे हैं कि हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से ब्लॉक माउंटेन्स आते हैं, सही है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये बहुत इजी है जी। दानिश पेज नंबर कौन सा? पेज में 30. Okay, now listen very carefully. Two long tracks called fault sometimes appear in the earth crust. सही है। क्या कह रहे हैं कि क्या होता है, जो हमारा लैंड होता है ना अर्थ का, उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े से 2 क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक किसे कहते हैं, आपको पता है ना क्रैक किसे कहते हैं हम लोग? जो हमारी वॉल में भी कभी कभी क्रैक्स आए हुए होते हैं, देखा है ना आपने? जब भी रॉक डैमेज होते हैं ना वॉल के अंदर, ये हम लोग वॉल को भी कुछ मार रहे होते हैं, वॉल को हम कुछ ठोक रहे होते हैं, तो अक्सर इस तरह से होता है कि हमारी वॉल में क्रैक आ जाता है, सही है। तो क्या कहेंगे, हमारी अर्थ की जो सरफेस है ना, उसके ऊपर क्या होता है कि 2 बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, सही। इन क्रैक्स को कहते हैं क्या है, फॉल्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्ट्स कहते हैं। ओके, 2 लॉन्ग ट्रैक्स दे आर कॉल्ड एज फॉल्ट्स। सही है। कह रहे हैं कभी कभी अर्थ की कहीं भी किसी भी हिस्से में क्या होते हैं, अर्थ के क्रस्ट में आ जाते हैं, सही है। द लैंड बिटवीन डैम मे बी पुश अपवर्ड टू फॉर्म लो माउंटेन, सही है। उसके बाद क्या होता है कि जो लैंड होता है ना, जो उनके बीच में, वो क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ पुश होता है, और इस तरह से क्या होता है, ये माउंटेन जो है वो बाहर निकल के एक माउंटेन बन जाता है। आप लोग पिक्चर में देखिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ था। ये जो 2 क्रैक्स हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ जो पहले सिंगल पीस ऑफ लैंड थी, सही है। उसके बाद क्या हुआ कि 2 बड़े बड़े क्रैक्स आए, सही है। जो क्रैक्स के बाद आपको नीचे एरोज दिखे ना, 2 बड़े बड़े डायग्राम में, सबको दिख रहे? Yes. सही है। तो क्या कह रही है कि जो एरोज है इसमें देखिए क्या हुआ कि जो क्रैक्स के बाद जो लैंड के अंदर क्या हुआ कि जो लैंड था वो ऊपर की तरफ पुश हुआ और वो ऊपर की तरफ बाहर निकल गया, सही है। तो क्या कह रही है, किस तरह से क्या होता है कि लोअर माउंटेन्स जो है फॉर्म हो जाते हैं। लोअर माउंटेन से क्या मराद है, ब्लॉक माउंटेन्स, यहाँ पे फॉल्ट माउंटेन्स, क्योंकि इनके 3 नेम है। या तो इसको लोअर माउंटेन कह सकते हैं, या तो आप ब्लॉक माउंटेन कह सकते हैं, या तो आप फॉल्ट माउंटेन्स कह सकते हैं, सही है। तो क्या कह रहे हैं कि हमेशा क्या होता है कि एक नॉर्मल सी एक जो है वो ग्राउंड होगा स्ट्रेट, और क्या होगा कि अचानक से क्या होगा उस ग्राउंड के ऊपर क्रैक्स आ जाएंगे, सही है। क्रैक्स आने के बाद क्या होगा कि ग्राउंड के जो बीच में जो एरिया होगा ना क्रैक के, वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ अपवर्ड पुश होगा, तो क्या होंगे, फॉल्ट माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं, सही है। अदर टाइम्स कभी कभी क्या होता है, कह रहे हैं कि माउंटेन्स क्या होता है, फ्लैट टॉप होता है। फ्लैट टॉप से क्या मुराद है, आप ऊपर से देखिए, आपको ट्राइंगल दिख रही है? 2 मिनट के मैं आप लोग Miss, कौन सा triangle? 2 मिनट में आप लोगों को अनम्यूट करिए, लेकिन तभी कीजिएगा जब आप लोगों से मैं कुछ पूछूं, प्लीज, सही ना। जस्ट गो थ्रू विद मी। आप लोगों को नीचे देखा होगा, आप लोगों को 2 एरोज दिख रहे हैं, सही है। कह रहे हैं कि ये एरो क्या करते हैं कि लैंड ऊपर की तरफ पुश हो रहा है, इस एरो से ये मुराद है, सही है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? मिस इनका मतलब क्या है रोज का? एरोज का मतलब है कि लैंड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा मिस, क्या कह अच्छा। रहे हैं कि एरोज की वजह से क्या हुआ, जब लैंड ऊपर की तरफ मूव कर रहा तो ये फॉल्ट माउंटेन बन गए। अब आप लोगों को फॉल्ट माउंटेन्स के ऊपर से शेप कैसी दिख रही है? आप लोग को ट्राइंगल शेप दिख रही है? किसी को ट्राइंगल शेप दिख रही है माउंटेन में? नहीं, सही है। मिस एरो के ऊपर जो है, जी, फॉल्ट माउंटेन्स के ऊपर किसी को शार्प लग रहा है फॉल्ट माउंटेन्स ऊपर से? नहीं मिस, नहीं लग रहे, क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि दे आर फ्लैट टॉप। फ्लैट टॉप से क्या मुराद है कि बिल्कुल स्ट्रेट होगा, सही है। एंड दे हैव स्टीप साइड। स्टीप साइड से क्या मुराद है कि ये क्या होते हैं, नीचे से भी क्या होते हैं, साइड से स्टार्ट होते हैं, सही है। दे आर कॉल्ड एज ब्लॉक और फॉल्ट माउंटेन, सही है। अब अदर टाइम्स कभी कभी क्या होता है कि जो लैंड होता है ना इनके बीच में, ये क्या होता है, ये नीचे की तरफ मूव करता है, जैसे आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिख रहा होगा। तो जब नीचे की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, इसको हम जो है ड्रिफ्ट वैली कहते हैं। ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज का करें, हम लोग ने वर्ड्स मीनिंग में भी किया था कि कोई भी चीज आपस में मूव करे। ड्रिफ्ट किसे कहते हैं, कोई भी क्रैक हो गया, कोई भी चीज मूव करे। तो क्या कह रहे हैं कि अगर 2 क्रैक्स के बीच में लैंड ऊपर की तरफ मूव करता है तो आपस क्या क्रिएट होते हैं, फॉल्ट माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। और जब भी लैंड नीचे की तरफ मूव करता है आपस क्या क्रिएट होता है, रिफ्ट वैली क्रिएट होती है, सही है। अब जो रिफ्ट वैलीज होती है ना, बेसिकली बताओ क्या होती है। आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो पाकिस्तान का एरिया है, हम रूरल एरियाज में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ विलेजेस इस तरह होते हैं जो कि बहुत डेप्थ में बने हुए हैं। आप लोगों ने देखा है कभी कभी, जैसे हम लोग कभी मरीज आते हैं, हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो हमने देखा कि माउंटेन्स के बाद सामने जो ओल्ड विलेजेस होते हैं, जितने सारे विलेजेस, सही है, दे आर यूजुअली वेरी डेप्थ, वो बहुत सारे डीप में बने हुए। यार जब मैं अपने गांव जाता हूँ ना, तो वहाँ पे बहुत साइड डेप का मतलब मिस?
गैप का मतलब होता है कि अंदर की तरफ, मतलब डीप। नीचे की तरफ। एग्जैक्ट। अच्छा मिस, अच्छा ओके। तो क्या कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, अगर लैंड ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली हमें छोटा सा माउंटेन दिख रहा होगा, लेकिन अगर लैंड नीचे की तरफ मूव करेगा तो हमें क्या दिख रहा होगा, हमें एक तरह का डैप दिख रही होगी ना, एक तरह से हमें एक कैसे कह सकते हैं उसको, हमें खड्डा दिख रहा होगा बेसिकली। सही है, यस यस। एग्जैक्टली। तो क्या कह रहे हैं कि अगर कभी भी लैंड जो है वो टू क्रैक्स के बीच में लैंड ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास क्या आएंगे, फॉल्ट माउंटेन्स आएंगे, लेकिन जब भी लैंड नीचे की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास क्या आएगी, रिफ्ट वैली या उसको डिप्रेशन वैली। रिफ्ट वैली। सही है, यहाँ तक कोई मसला? डिप्रेशन वैली। नो। तो नहीं है, अगर आप रिफ्ट वैली कह सकते हैं तो आप डिप्रेशन वैली कह सकते हैं। यहाँ तक कोई मसला? समझ में आया फॉल्ट माउंटेन्स क्या होते हैं? यस। सही है। और ये रेयर क्यों होते हैं? ये रेयर इसलिए होते हैं क्योंकि कोई भी माउंटेन जो है वो स्क्वायर शेप के नहीं होते, इनकी टॉप भी फ्लैट होती है और इनकी साइड्स भी फ्लैट होती हैं, और ये खुद किस तरह की शेप में होते हैं, ब्लॉक की शेप में। और एक ब्लॉक किस तरह की शेप में होता है? स्क्वायर। स्क्वायर शेप में होता है। सही है, सो दैट इज व्हाई इनको क्या नाम दिया गया है, ब्लॉक माउंटेन्स का। यहाँ तक कोई मसला? यस राफिया, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मिस जी, मिस ये रिफ्ट वैली को हम डिप्रेशन वैली को कहते हैं। या तो रिफ्ट वैली या तो डिप्रेशन Miss? वैली। देखो माजिद, बेसिकली इसके नेम्स है। रिफ्ट का क्या मतलब होता है? रिफ्ट का ये मतलब होता है जब भी कहीं से भी लैंड Miss, Rift फ्लैट हो Valley? जाए या लैंड वहां से बैठ जाए बेसिकली। सही है, तो डिप्रेशन वैली भी इसका सेकंड नेम है। ये ठीक है सब मिस। मिस जैसे वो होता है ना कि एक जगह एक लैंड है, एक जगह जैसे एक लैंड और बीच में नीचे बहुत जाके नीचे पानी होता है वैसे। जी बिल्कुल। जैसे नीचे क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा जो माउंटेन एरियाज होते हैं ना, स्पेशली वहाँ पे ये सब चीजें होती हैं कि क्या होता है कि डैप के अंदर एक लैंड पूरा खाली होता है, तो आहिस्ता से क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कि वहाँ पे आकर अपने विलेजेस बना लेते हैं, या तो उस तरह की चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होती है वो दोनों के बीच में लैंड में गैप होता है। सही है, यहाँ तक कोई मसला सबको समझ में आ गया? हमेशा समझ में आ गया बेटा? जाहिद ओके, अली सलमान है, अनाया है, तो सारे बच्चे टीचर मुझे भी समझ में आ गया। ओके आरिफ, एक्सीलेंट। सही है, अब टीचर मुझे भी समझ में आ आ गया। ओके, सो अब आप लोगों से मुझे क्या कहना है कि हमारी क्लास कितने बजे ओवर होगी? 11:15 पे। 11 है। 11:20। बस 11:15। नो मिस 11:15 पे 5 मिनट ऐसे मिलते हैं। ओके यस मिस, वो सिर्फ सही कह रहे हैं। फ्री टाइम होता है तो वो मैं यस मिस 11:15 को सारा अपन काम करवा ऐसे दिया, फ्री में बीच जैसे से मिस फ्री टाइम ज्वाइन करते हैं। मिलता नहीं है ना। 5 मिनट गैप मिलता है। मिस 7 मिनट बाकी। जब से आप लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसी क्लास में मैंने पूछा सबकी आवाज निकल गई है ना, ये बोल रही हूँ ना मैं। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो नेक्स्ट क्लास है, सही है, उसमें आप लोग टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा, करना हिस्ट्री ऑटोमेटिकली पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। सही है, के साथ तो अपनी कॉपीज प्रिपेयर करके रखिएगा प्रॉपरली। ओके मिस। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए। आप लोग आंसर्स हमारे से ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर 5 तक है। यस टीचर, जो आपने मुझे 2 पेज छुड़वाए हैं, जरा पहले आज 2 पेज और उनमें टीचर मुझे क्या करना है? आपको सिलेबस लिखना और इसको वर्ड्स मीनिंग करनी है। ओके टीचर, वर्ड्स भी मुझे सेंड कर दीजिएगा। बेटा मैं ग्रुप पे सेंड कर चुकी हूँ। ओके, मिस आपने और क्वेश्चन syllabus भी। आंसर मिस आप क्वेश्चन आंसर्स कब सेंड करेंगी? पूरी बस क्लास खत्म होते हैं। ओके हम लोग चले जाएं, लीव कर दें? नहीं मिस, अभी आपके पास टाइम है 11:15 तक। कर दे। 6 मिनट बाकी। मिस टाइम है। पास टाइम है 6 मिनट बाकी। 6 मिनट बाकी है। लोग 10 मिनट अभी बाकी हैं। 11:05 हो रहे हैं। 11:09 सो रहे हैं। 11:10 हो रहे फिर हैं। तुम बहुत पीछे हो। 11:09 हो रहे हैं भाई, घड़ी भी। लाफिज हाफिज मिस। लाफिज अल्लाह हाफिज मिस। लाफिज। मिस जब से एक बात पूछती थी। आरिफ वेट, मिस मेरी भी एक बात पूछनी है। मिस वो जो आपने कहा डायग्राम का कहा है, वो कहाँ से देख के बनानी है? हाँ मिस, डायग्राम कहाँ से देख के बना रही है? मुझे डायग्राम सेंड कर दीजिएगा। पेज नंबर 29 पे। बुक के अंदर। पेज नंबर 29 पे देखना।
मिस वो जो नीचे बनी हुई है डायग्राम 29 में, हाँ, बनी हुई। ओके ऑरेंज मिस, वाली। ओके क्या ओके मिस। हुआ था? मिस खाली ये दो चीजें बनानी है ना। ओके मिस। बिल्कुल मिस ये वाली, जी बिल्कुल। ये वाली। मिस ये बना रही है, ये दोनों। तुमने पूरी क्लास में एक दफा कुछ नहीं किया। मिस ये दोनों, नहीं ये तीनों मिस ये दोनों बनानी है। तो समझ नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आ रहा? राफे नो बॉल गिटार ले आया, नो बॉल। और हमें खड़ा नहीं मांगा। अब्दुल राफे नो बॉल, यहाँ पे मिस ये दोनों बनानी है। जी नो दोनों बॉल, बनाए। नो बॉल, फ्री हिट। अब्दुल राफे नो बॉल। मिस 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 आसिफ प्रोफेशनल क्रिकेटर। आप लोग मुझे बात बताइए, आप लोग खुद लीव कर रहे हैं, मुझे आप लोगों को निकालना पड़ेगा इस क्लास में से।